Very kind introduction. Good afternoon, everyone. Before I begin my presentation, I wish to thank Dr. Vandana Narula for inviting me for this talk. And a big hello to all of you, all the dignitaries present here, all the office bearers, the participants, and all the invited guests. Present with us today is also Dr. Navneet Thakkar. She's a professor in obstetrics and gynae at GMCH Chandigarh, and she's here with me today just in case there is any problem in internet or anything, because the show must go on. So if there is any problem at my house, she will take on the presentation so that all of you benefit from this great effort which your team has put together. So let me just share my screen first. Just give me a moment. Endoscopic surgery. So let me just begin. As I said, we will be actually talking about prevention of cancer of the cervix, and I will take you in very, very simple way through it. So just walk with me. Let me just start with a very simple thing. What is cancer? So we all know that the cells keep dying, they keep getting renewed. Newer cells keep forming, older cells keep dying. This is how the body renews itself. But somewhere this system gets imbalanced. The abnormal cells continue to grow so uncontrollably that they destroy a lot of these body tissues and then they form a cancerous growth. And what is cervix? Cervix, the opening of the uterus is called the cervix. Just give me a moment. Let me go on full screen. All right. So we'll continue with that only. So now you can see, I'll just go back to the previous slide. So you can see that this is the uterus, these are the tubes, this is the ovary. I hope you can see my pointer. And this is the vagina, and the lower part or the mouth of the uterus is called the cervix. This is what it is. This is what it looks like when we look at it through a speculum. And this is what cancer of the cervix looks like. I don't wish to have very graphic pictures, so we'll just go on. So here what we have is the incidences of cancer cervix. It is the second most common cancer of females in the world. You will see that it is quite far back from the incidence of breast cancer. But when you look at the death, it is so close to the death rates of breast cancer. So this is what is very alarming, that the mortality rates of cancer of the cervix is so high. So when you look at the incidences in India, you will see that the mortality rate due to cancer of the cervix is almost 1/4 of the total cancer in the entire world, which is very high. So now let's look at what causes cancer of the cervix. What causes this? Now, many, many years back, we used to tell our patients that cancer of the cervix, 70% of the cause is due to the human papilloma virus. But now we tell them that it's not just 70%, 90 to 100% of the cervical cancers are due to human papilloma virus. The human papilloma virus, or the HPV, it infects the mucosal cells and it is transmitted via sexual contact. It has to be a direct skin to skin contact. Penetration is not really required. There are more than 200 types of HPV which exist. 14 of these involve the cervix and the anogenital region, and I considered high risk. Of these, are you able to see some scratches on the screen by any chance? Yes. Yes, Dr. Nirja, I was wondering. Yes. I wonder why that is coming. I will stop the screen share for a moment. Your pen might be
I'm to your not pen. using the pen, but I'll stop screen share and start again. May I please? Yes, please. The host always gets an option disable annotations. More है ऊपर जाके right hand side में more option है आपकी screen पर window पर more और उसमें options होंगे disable annotations. Hope you can see that. Maybe I can give you the screenshot of that. I could see that more earlier, but let me share the screen first and see. Should I try again? No, it is not about sharing your screen. Somebody is doing drawing and painting. So you need to disable annotations so that no one can misuse this opportunity. Yeah. Okay. Meanwhile, we can just request all members to ensure that nobody around them is doing this scratching on the screen. The host can disable annotation. The host has got this option only. No one else can do it. Okay. I'm not seeing that more. The host will have that option there. Yeah, I must be the host just now. Maybe. Yeah. Let me try again. It's on right hand side downwards. Now I can see it. Now I can see more and record reactions, disable annotation for others. Yes. So I've now disabled it. Let's see if it works. Yeah, thank you for that. Ma'am, one suggestion. Yes, please. Can I speak? One suggestion, since children are here, they may not follow your English. So you give lecture little in Hindi also. Yes, I will. I'll do that. It's not such a big deal. Thank you so much. I'll just do that. So what causes cervical cancer? Cervical cancer होता ही क्यों है? So इसकी वजह एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV इसको बोलते हैं. आज के टाइम पे हमें ये पता है दैट 100%, ऑलमोस्ट 100% सर्वाइकल कैंसर इज बिकॉज ऑफ HPV. HPV एक वायरस है, DNA वायरस है, जिसके हमने 200 टाइप्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं. 14 इसमें से 14 ऑफ दीज इनको हाई रिस्क HPV बोलते हैं. और ये हाई रिस्क HPV इसलिए हैं बिकॉज ये हाई रिस्क फॉर कैंसर. ये है ये 14 टाइप्स ऑफ HPV. इनमें से 16 एंड 18 हैव बीन थॉट कि 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन दोनों की वजह से है. बाकी वाले कैंसर्स और भी कैंसर्स हैं, सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं कॉज करता HPV. सर्वाइकल कैंसर 100% इज बिकॉज ऑफ HPV की वजह से है. बट लुक एट दिस, अराउंड 90% ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ anal cancers are because of HPV. फिर vaginal cancers हैं, penis के cancers हैं, men में vulvar cancers हैं, and back of the throat पे cancers हैं, और genital warts. 100% of these, ये जो इनको मस्से भी बोलते हैं, these 100% इनका cause है HPV. So HPV infections बहुत common है, but सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ HPV कैंसर में डेवलप करेगा. अभी हम जो ये पिक्चर देख रहे हैं, दिस पिक्चर इज ऑफ सेल्स सर्विक्स के अंदर, बच्चेदानी के मुंह पे जो सेल्स होते हैं, ये उसकी पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये अनइन्फेक्टेड है, इन्फेक्ट नहीं हुआ. यहाँ पे HPV हुआ तो ये सेल्स इन्फेक्ट हो गए और इनके अंदर ये HPV वायरस इन सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करने लगा, रेप्लिकेट करने लगा, डुप्लीकेट करने लगा, और ये सेल्स अब ट्रांसफॉर्म होने लगे इनटू प्री कैंसर्स, जिनको बोलते हैं CIN1, 2, 3, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड. सबसे लोअर ग्रेड CIN1, फिर सबसे सीरियस CIN3, एंड फिर ये इन्वेजिव कैंसर जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के ये स्प्रेड हो गया, दिस इज इन्वेजिव कैंसर. सो अब नेचुरल हिस्ट्री में कई बार लोग पूछते हैं कि हाउ मच टाइम डज इट टेक कि HPV इन्फेक्शन हुआ, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हुआ, उसके कितनी देर के बाद कैंसर हो जाएगा? 10 to 20 years, ये हमारा मानना है इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स.
बट जो इंडिविजुअल्स थोड़े से इम्यून इनकॉम्पिटेंट हैं, थोड़े से वीक हैं, कुछ एड्स है, कोई इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, उनमें विद इन 5 to 10 years ये कैंसर डेवलप हो सकता है। और ये डिफरेंट स्टेजेस का ये टाइमलाइन है कि HPV CIN3 तक 1 year तक भी पहुंच सकता है। इनमें से जो CIN1, 2, 3 ये प्री कैंसर के स्टेजेस हैं। रिग्रेस, रिग्रेस का मतलब होता है वापस चले गए। 2 था फिर 1 हो गया, 1 था तो वो सिर्फ इन्फेक्शन में हो गया और नॉर्मल हो गया। सो ये परसेंटेजेस हैं, कितने रिग्रेस वापस नॉर्मल की तरफ जाएंगे, ये परसिस्ट करेंगे और ये प्रोग्रेस करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। दे विल बिकम CIN3 और फिर इन्वेजिव कैंसर। नेचुरली CIN1 1% इन्वेजिव कैंसर बन जाएगा, CIN3 12% इन्वेजिव कैंसर बनेगा। अब हम जो देख रहे हैं इधर, दिस इज HPV, हाउ कॉमन इट इज, ये कितना कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। जो डार्क ऑरेंज वाले आप मार्क्स देख रहे हैं, ये इन एरियाज में HPV बहुत कॉमन है इन्फेक्शंस। ये देखो अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। हमारा इंडिया इज लाइटर ऑरेंज थोड़ा सा, इसमें ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ HPV इन्फेक्शन है, मेन इन एरियाज में है। अब इन HPV इन्फेक्शंस में से हमारे डेंजर वाले 16-18 वो कितना है? सो ये देखो, ये ऑलमोस्ट 78% इन इन्फेक्शन साउथ एशिया में 16 और 18 है। बाकी वैरायटीज जो हैं, जो लो रिस्क हैं, जो कम रिस्क हैं, वो कम है। हाई रिस्क वाले 78% हो गए। सो इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल विल गेट कैंसर ऑफ द सर्विक्स? हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है। एवरी 8 minutes a woman will die of cervical cancer, उसकी डेथ होगी एवरी 8 minutes। नाउ ये जो मैंने फिगर यहाँ लगाया, इसमें देखो ये वर्ल्ड वाइड कैंसर का नंबर कितना है। अब देखो एवरी ईयर 97,000 इन इंडिया। लुक एट नॉर्वे 290, 450, 912, 2600। ऐसा क्यों? ये इतना वाइड डिफरेंस क्यों? ये जैसे जैसे हम आगे इकट्ठे चलते जाएंगे इस प्रेजेंटेशन में, आपको ये समझ आएगी कि इन कंट्रीज ने क्या कमाल कर दिया। कि देखो 1 year में नॉर्वे में सिर्फ 290 केसेस ऑफ कैंसर सर्विक्स। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? कैंसर सर्विक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो HPV जितने भी कैंसर्स कॉज करता है, उनको अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज करना या स्क्रीन करना पॉसिबल नहीं है। कैंसर सर्विक्स पॉसिबल है। सो कैंसर सर्विक्स इज प्रिवेंटेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड अगर हम आज नहीं एक्ट करेंगे तो बाय 2030 डेथ्स विल राइज बाय 50%। तो व्हाट आर द एफर्ट्स? हम लोग क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? WHO ने बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, ये ग्लोबल लेवल पे है। इंडिया में हमारी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी भी बहुत काम कर रही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉल्पोस्कोपी भी बहुत काम कर रही है। तो लेट अस नाउ टॉक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर सर्विक्स। हाउ कैन वी डू इट? देखो, फर्स्ट लेवल डिफेंस, सबसे पहले आप क्या करोगे? यू कैन वैक्सीनेट पीपल अगेंस्ट कैंसर सर्विक्स। अब जो भी चीज एक वायरस या बैक्टीरिया से कॉज हो, आप उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन तो निकाल सकते हो ना। सो ये दिस इज कॉज्ड वेरी क्लियरली बाय अ वायरस। सो अगर वायरस के अगेंस्ट है, जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन निकला, तो आप इसके लिए भी वैक्सीन निकाल सकते हो। सेकेंड लेवल होता है स्क्रीनिंग, और थर्ड लेवल में होता है ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट। सो 1796 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप किया। मोर देन 200 years लेटर हमारे को HPV वैक्सीन के लिए US FDA का अप्रूवल मिला। US FDA इज फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक बहुत बड़ी बॉडी है जो ऐसे वैक्सीन और ड्रग्स के लिए अप्रूवल देती है, जो वर्ल्ड वाइड इनको ऑनर किया जाता है। तो HPV वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट लेवल डिफेंस। ये प्राइमरी प्रिवेंशन इसको मानते हैं।
नाउ हमारे से बहुत लोग क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि ये एचपीवी वायरस तो इंजेक्ट कर दिया तो उसी की वजह से तो नहीं एचपीवी हो जाएगा। सो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये वायरस नहीं इंजेक्ट होता वैक्सीन में, ये उसकी एक L1 जीन होती है, उसका प्रोटीन लेके यीस्ट सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ प्रोटीन, नॉट द एक्टिव वायरस। और वो प्रोटीन लेके एक इंडिविजुअल में इंजेक्ट होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। सो HPV vaccine is a protein. HPV vaccine itself is not injected. उसकी वजह से HPV नहीं हो सकता। तो हमारे पास वैक्सीन्स तो जो आपके सामने दिख रही हैं स्क्रीन पे, ये 3 वैक्सीन हैं, बट विच वन टू चूज? नाउ Cervarix vaccine is effective against HPV 16 and 18. Very good. So, cancers of the cervix, vulva, vagina. Vulva is the outer area of the lower part of the body. It is the skin, the labia, and all that area is called the vulva. So, 16-18 इनके लिए effective है. Gardasil की जो है वो 6-11 के against भी effective है, which is genital warts. And अब Gardasil 9 available है, which is 9. So 9 types of HPV के against ये valid है, which means कि इसका protection increased है. There is an increased protection because of इतने सारे viruses के against ये act कर रहा है. Cervarix incidentally आजकल इसका शायद प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रॉबेबली ये आगे मिलेगा नहीं. हमारे पास क्या रहेंगे? गार्डासिल ये टेट्रावेलेंट है, टेट्रा मीनिंग 4. सो ये 4 के अगेंस्ट, 4 वायरसेस के अगेंस्ट, टाइप्स ऑफ एचपीवी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. एंड 9 इट्स नॉनावेलेंट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 9 टाइप्स ऑफ एचपीवी. सो लेट्स लुक एट licensure. Now, licensing कहाँ कहाँ पे ये हुई है और कौन सी वैक्सीन के लिए हुई है? आप हमारे इंडिया में अगर देखोगे, देखो कई जगह पे सिर्फ गार्डासिल 4 लाइसेंस्ड है ग्रीन एरियाज में, रेड में सिर्फ सर्वरिक्स. इंडिया में दोनों लाइसेंस्ड है. दैट मीन्स इट्स लीगल टू यूज बोथ सर्वरिक्स एंड Gardasil in India. It is licensed. So now, ये देना कब है? The best time is between 9 to 14 years of age. तो इस टाइम पे सिर्फ 2 doses are good enough. आप अगर 9 to 14 years of age पे दे रहे हो, ऐसे बच्चे they have not been as yet exposed to sex. इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है. सो इनको सिर्फ 2 डोजेस देना गुड इनफ है. बट अगर आप 15th बर्थडे के पहले नहीं दे पाए खुद को, अगर आप यंगस्टर्स हो और आप अपने बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को, देन 15 to 26 आप दे सकते हो 3 डोज शेड्यूल. इसमें 3 डोजेस देने हैं. हम इसको कहते हैं 0, 2 and 6. गार्डासिल की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कि 0 मीन्स द फर्स्ट शॉट, 2 मीन्स एट 2 months and 6 means at 6 months from the first shot. So this is 0, 2 and 6, but कई special circumstances होती हैं. Can we change this schedule? Yes, research says yes you can. किसी ने बाहर जाना है और कोई वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है तो 0-1-3 months पे भी ये दे सकते हैं. But what about people who are more than 26 years of age? Yes, they can get the vaccination अगर 26th birthday से पहले उनको complete vaccination नहीं मिला, but उनको हम लोग बताते हैं that आपका protection is much less, क्योंकि immunologically आपका system is less stronger than when it was younger. What about 45 years के ऊपर? No, it is not licensed for use more than 45 years of age. During pregnancy, it is best to avoid it. But if a patient gets pregnant, तो remaining doses को आप delay कर दो. और अगर vaccinated हो गए गलती से pregnancy में तो कोई बात नहीं है. It is not a reason to cause an abortion. उसको abort करने का required नहीं है. What about safety issues?
This is a very safe vaccine. छोटे मोटे local problems हो सकते हैं, like with any other flu vaccine or any other vaccine that you take. जो body के और late problems हैं वो बहुत rare हैं. They are meant to be listed but not meant to frighten you. So mainly it is these local things like with any other vaccine. Best is that you should not give this vaccine अगर किसी को कोई severe acute illness है. उस टाइम पे थोड़ा सा वेट करो टिल दे आर आउट ऑफ देयर इलनेस. एक बीमार बंदे को वैक्सीन नहीं देना. हम तो डॉग्स में भी ऐसे करते हैं. इफ दे आर वेल वी स्किप देयर वैक्सीनेशन. डू यू नीड अ बूस्टर? अगर आपका प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है 2 doses बिफोर 14 years or 15 years and 3 doses, do you need a booster? The answer is no, because the protection हमारे mathematical models say that it is lifelong protection. You don't need a booster. So what I'm now showing you is that 107 countries जिन्होंने अपने national immunization program में इस वैक्सीन को include किया. What does that mean? Licensing means कि आप legally allowed. नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि जैसे पीडियाट्रिक्स में वो एक प्रोग्राम होता है कि 6 weeks पे GDPT लगना है, फिर पोलियो लगना है, फिर टेटनस लगना है. वो जो सारा प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस वैक्सीन लगना है, वो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को जब अडॉप्ट करती हैं कंट्रीज, वो सिर्फ यही कंट्रीज हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट part of that country. हमारे country में ये national immunization program में included नहीं है. Australia was the first country. I want to show you how this it was. जब ये national इसमें program में vaccination program में include हुआ, and both boys and girls were vaccinated in this program. And इस program शुरू होने के बाद जो सर्विक्स की एबनॉर्मैलिटीज थी CIN सारी कितनी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई. By 2014, 38% of the US females had already received एक shot, at least एक shot. उनके यहाँ पे क्या हुआ? उनके यहाँ पे देखो ये incidence of HPV कितना कम हो गया. Both in 14 to 19 years and 20 to 24 years, कितना drastic reduction of the amount of HPV in that population. Canada में 2006 में ये शुरू हुआ था for females between 9 to 26. इनमें भी देखो CIN 1, 2, 3 after that कितना drastically drop हो गया. So इसमें कोई value है. So South Asia और एशिया की अगर हम बात करें तो 8 कंट्रीज ने हमारे एशिया में इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया है. एंड लाइक आई सेड इंडिया ने नहीं किया. तो इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में एक दो इधर उधर स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, गुजरात ने कई में शुरू किया. कई जगह पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी शुरू हुए, मोगा, बठिंडा एंड 1 or 2 more places. बट जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो भी बंद हो गए. कई जगह पे दिल्ली में कहीं इधर उधर दिया. रोटरी ने टेकअप किया था अमृतसर और जलंधर एंड प्रोबेबली वन मोर सिटी. दैट प्रोग्राम वाज डूइंग वेरी वेल. उनकी फंडिंग यूएस से थी, बट करंटली उसका स्टेटस क्या है आई डोंट नो. बट ये तो एक स्मॉल तिनका हुआ. कंट्री तो बहुत ह्यूज है. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन प्रिपेयर कर रही है and we are hoping कि ये single dose vaccine होगी. What people want to know is symptoms क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई early cancer है या late cancer है? देखो early cancer में any kind of irregular bleeding, ये period आया, ये next period आया, उसके बीच में कोई टिप bleeding हुई, irregular bleeding, या कोई menopause के बाद bleeding हुई, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हुई, या कोई इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज हुआ जो फाउल स्मेलिंग हो सकता है या ना भी.
ये सब साइंस हैं अर्ली कैंसर के, सो यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड विद अ डॉक्टर. एडवांस्ड कैंसर के हो सकते हैं क्योंकि सर्विक्स है ना, सो उसके नर्व सप्लाई बैक पे जाती है, तो परसिस्टेंट बैक पेन, लेग पेन, वेट लॉस जो सारे कैंसर्स में होता है, फटीग, एपेटाइट लॉस होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, swelling of one or both legs. These are the symptoms of invasive cancer. What is the symptoms of HPV infection? कि भैया infection हुआ है? No, no symptoms. What are the symptoms if there is early pre-invasive cancer? No, no symptoms. So that is why if we want to screen for cervical cancer, we want to find out कि है कि नहीं, तो screening करना कितना important है. तो इफ स्क्रीनिंग इज सो इम्पोर्टेंट, हम अब आ गए सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस पे. सेकेंडरी प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट करें, ये स्क्रीनिंग मेथड्स हैं आपके स्क्रीन पे. द फर्स्ट इज देखना, लुकिंग एट द सर्विक्स, 5% डाइल्यूट एसिटिक एसिड लगाया, जो एरियाज डॉक्टर को वाइट दिखे या ट्रेन मेडिकल पर्सन को वाइट दिखे वो सस्पिशियस हैं. सो दिस इज विजुअल इंस्पेक्शन, बट जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम हो उसमें this works very well. Then we have pap smear and liquid based cytology. Cytology means what? It means examining the cells को examine करना cytology बोलते हैं. या वो pap smear से कर सकते हो या liquid based कर सकते हो. बच्चेदानी के मुंह से थोड़ा सा डिस्चार्ज लेके या थोड़ा सा सेल्स लेके उसको एग्जामिन करना, ये मेथड है. या उसी सिक्रेशंस में से ये देखना कि इसमें एचपीवी के वायरसेस हैं, दैट इज एचपीवी टेस्टिंग. सो दीज आर द मेन स्क्रीनिंग मेथड्स. जैसे पैप स्मेयर आपने वो पानी लेके स्लाइड पे लगा लिया या आपने लिक्विड में डाल दिया और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया. जब साइटोलॉजी की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं पैप स्मेयर बेटर है कि एलबीसी, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. वो दोनों की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी सेम है, बट इट इज इजियर टू डू एलबीसी. आपका पिकअप रेट बेटर है, क्लैरिटी, स्मीयर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है. कोई पेशेंट को कोई डिस्चार्ज है तो वो डिस्चार्ज वो क्लाउड कर देगा सेल को, आपको असली सेल्स दिखेंगे नहीं. बट लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में क्योंकि वो पूरे चीज को सेंट्रीफ्यूज करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सेल्स जो स्प्रेड करते हो आप स्लाइड पे वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, बहुत क्लियरली दिखते हैं. सो ये सर्विक्स है, इस पे हमने एक स्पैचुला घुमाया जस्ट जेंटल एंड उसको स्लाइड पे स्मीयर कर दिया, या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में बाहर से स्पैचुला घुमाया और सर्विक्स के अंदर से ये हल्का सा जेंटल सा ब्रश लगा के फ्लूइड में डाला, जिसको सेंट्रीफ्यूज करके सेल्स एग्जामिन करते हैं. ये देखो टाइमलाइन, यहाँ पे 1949 में पैप स्मीयर हमारा आया था. 1996 में लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आ गई, सो इट इज अ बेटर टेक्नोलॉजी. एंड 2000s में एचपीवी टेस्टिंग आई. अब एचपीवी टेस्टिंग को थोड़ा सा यहाँ पे देखें, आप ये पहले भी स्लाइड देख चुके हो, ये इन्फेक्टेड नहीं है. यहाँ पे ये सर्विक्स के सेल्स हैं, ये इन्फेक्शन आई, उसमें ये सेल्स के अंदर ये डुप्लीकेट करने लगे एचपीवी. ये देखो ये डुप्लीकेट रेप्लिकेट करने लगे, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ले आए एचपीवी, और फिर प्री कैंसर और कैंसर. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे रेप्लिकेट करना शुरू किया, हम इन सेल्स को पिकअप करके देख सकते हैं ना कि एचपीवी का डीएनए है कि नहीं. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल. सो जब आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हो, पैप, एलबीसी, एचपीवी, डीएनए, वजाइना में कुछ और नहीं होना चाहिए. सो देयर शुड बी नो मेंस्ट्रुअल ब्लड, नो जेलीज, टैम्पन्स, वजाइनल क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स. डूश मत करो 2-3 दिन पहले टेस्ट के, और वजाइनल सेक्स मत करो 2 days बिफोर योर टेस्ट, सो दैट वो इंटरफियर नहीं करे फ्रॉम द, जब वो लैब में आपके टेस्ट जाते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन, हमने अपने यंगर जनरेशन को वैक्सीनेट कर दिया, गर्ल्स को कर दिया, अब वो विमेन हो गई, वो सेक्सुअली एक्टिव हो गई. डू दे नीड स्क्रीनिंग? द आंसर इज यस, because
they also must be screened in the same way, because you don't know which serotype or type of HPV may infect them at a later stage. So जो हमारा अब उनका शेड्यूल भी सेम ही होगा. So start screening at 21 years of age, irrespective of the vaccination status. Up to the age of 30, from 21 to 30 years of age, सिर्फ साइटोलॉजी कर सकते हो. पैप कर लो, LBC कर लो. This is because HPV इस एजेस में बहुत कॉमन होता है, और हमें पता है कि वो रिग्रेस भी तो कर जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो अननेसेसरी टेंशन का को लेना. So at this time, don't waste money and effort, just do a cytology. 30 years के बाद, 30 to 65 years, साइटोलॉजी के साथ साथ रेकमेंडेड ये है कि दोनों करो, साइटोलॉजी भी करो, HPV भी करो. पर ऐसा नहीं है कि आप एक नहीं कर सकते. आप सिर्फ साइटोलॉजी भी कर सकते हो, सिर्फ HPV भी कर सकते हो. पर HPV जो कोबास टेस्टिंग है वो अभी तक इंडिया में आई नहीं है. HPV अकेला स्टैंड अलोन टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोबास टेस्टिंग है, वो इंडिया में जैसे आ जाएगा तो आप सिर्फ HPV अकेला भी कर सकते हो. जब आप ये अकेला करते हो साइटोलॉजी, तो 3 इयर्स करना है. जब आप को टेस्टिंग करते हो, ये भी किया वो भी किया, दोनों किया, तो यू कैन डू इट एवरी 5 years, जो पेशेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है. सो 65 की एज पे आप पैप सारी ये स्क्रीनिंग, पैप, HPV सब बंद कर सकते हो. यू डोंट नीड टू स्क्रीन आफ्टर द एज ऑफ 65. इसमें कुछ राइडर्स हैं. देखो, अगर आपने 65 की एज पे अपना कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बंद करना है, यू शुड नॉट हैव हैड कैंसर सर्विक्स और दीज एबनॉर्मैलिटीज पिछले 20 सालों में. आपकी पिछले कुछ सालों में 3 नेगेटिव साइटोलॉजी या और 2 नेगेटिव को टेस्टिंग होना जरूरी है इन द प्रीवियस 10 years. सो आपके लिए कैलकुलेट करा मैंने कि 55 to 65 की एज में अगर आपके 3 नेगेटिव पैप हैं या LBC या 2 नेगेटिव को टेस्टिंग है, दिस प्लस HPV, then we are good. But the last test should have been done within the last 5 years, which means more than the age of 60 आपका एक टेस्ट होना जरूरी है, तब आप 65 की एज तक बंद कर सकते हो. अगर ये कंडीशंस मेट नहीं है, you haven't met these conditions, then continue to do screening जब तक आप इस लेवल पे पहुंचते नहीं. Right? So here, this is one, I mentioned this earlier, why some countries, उनका क्यों इतना लो इंसिडेंस था. हमने नॉर्वे का देखा था, हमने डेनमार्क का देखा था. देखो ये वाला कितना स्लाइड है, जहां जहां पे ये पैप स्मीयर या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए, उसके बाद देखो इनका अमाउंट ऑफ कैंसर सर्विक्स एंड मोर्टेलिटी रेट्स, डेथ ड्यू टू दिस कैंसर सडनली. सो कितना इम्पैक्टफुल है ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम. सो now we come to the third part, tertiary prevention. अच्छा, कुछ पॉजिटिव आ गया, HPV पॉजिटिव आ गया या साइटोलॉजी पॉजिटिव आ गया, तो ऑफ कोर्स हमारे बड़े एल्गोरिदम्स हैं, ये पॉजिटिव है तो ऐसे 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 ऐसे. बट जस्ट मोटा मोटा, अगर कोई प्री कैंसर के लिए आपका साइटोलॉजी पॉजिटिव आया, तो आपका डॉक्टर कॉल्पोस्कोपी, मेरे फोन का चाहिए, जो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, उसको वो सर्विक्स एक टेलीस्कोप और मैग्निफिकेशन के साथ देखते हैं. आप देखो यहाँ पे ये स्क्रीन है, इस पे वो देख रहे हैं, क्योंकि वो सर्विक्स मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, और जहां जहां जरूरत हो, and treatment is done accordingly. Can I just interrupt you for a minute? There are a couple of participants who are causing constant disturbance. A window labeled Redmi B and Induji, and I think IWC Jodhpur. I request you to please put yourself on mute. Please, thank you. And Dr. Nirja, I think you can mute all from your thing. How? Just scroll in the participants list and
there is a square which says mute all, just mute them all, please. And when you will mute all, when you will tick mute all under the participant list, one question will be asked, that is, do you allow participants to unmute? Usko aap tick mat kariega. Please don't tick that. Yeah. Yes. Mute. Yeah, I've done it. Thank you. Can you hear me now? Okay, cool. So, अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम डिटेक्ट्स कैंसर, है ना, प्री कैंसर तो कॉल्पोस्कोपी बायोप्सी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट, बट इफ देयर इज कैंसर देन ऑप्शंस बहुत हैं. द डॉक्टर विल एडवाइज सर्टन मैनेजमेंट, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, या पेन रिलीफ है, whatever. So the WHO has called for a world free of cervical cancer. This declaration was given in 2020. So proposed ये था कि 2030 तक 90% of the girls should be vaccinated, all girls below 15 years of age. Screening of 70% of the women should have been done. Minimum screening क्या है? What is the minimum? That एक बार 35 पे हो जाए, एक बार 45 पे हो जाए, and then accordingly you manage. At least 70% of the population. 90% of those who have been identified, they should get treatment. Pre-cancer है तो उसको treatment करो, invasive है तो manage करो. 90% of them, that means early management. So ये 90, 70, 90 का एक rule बनाया. Goal ये था that we should have less than 4 cases of cancer cervix per 100,000 woman years. Woman years का ये terminology medical field में mean करता है that 1 year of a woman's life is 1 woman year. So 100,000 woman years में सिर्फ 4 cancer cells should, cancer cervix should be detected. ये हमारा goal है to achieve a cervical cancer free future. Because अगर हम smallpox को eradicate कर सकते हैं, we can do that for cervical cancer also. But out of all these programs, I found that अगर हम globally देखें, worldwide देखें, cost effective क्या है? So cost effective जब analysis किया तो इसमें ये था that अगर आप vaccinate करो pre-adolescent girls को, सबसे cost effective ये है, especially उन countries में जहाँ पे resources थोड़े से कम हैं, constrained हैं, और जहाँ पे ऑल्टरनेटिव कैंसर प्रिवेंशन मेजर्स लिमिटेड कवरेज है, आप दूर दूर तक कवरेज के लिए आप उनके पैप स्मीयर्स और एचपीवी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, तो वैक्सीनेशन इज वन वेरी पावरफुल टूल. अब आते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे. सो जस्ट फॉर एन आइडिया, एटलीस्ट हमारे सिटी में, इट कुड बी डिफरेंट सिटीज में, छोटे सिटी आई डोंट नो, इट मे बी डिफरेंट, but simple conventional PAP around 500, LBC around 900, सिर्फ HPV स्क्रीन अगर कर रहे हैं तो अराउंड 2200, ऑल्दो कोबास टेस्टिंग की वेट करनी चाहिए. एंड अगर आप LBC प्लस HPV DNA कर रहे हो तो इट्स अराउंड 3000. सो दिस इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम HPV स्क्रीन अलोन. इट इज बेटर कि आप यही कर लो. गार्डासिल ये वैक्सीन्स हैं. गार्डासिल 4 का कॉस्ट अराउंड 3600, गार्डासिल 9 का कॉस्ट अराउंड 11,000 पर डोज. ईच डोज कॉस्ट दिस मच. तो अगर आपको लगता है कि बहुत हाई रिस्क है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, तो उन केसेस में आप गार्डासिल 9 कर सकते हो. आपको खुशी होगी सुन के कि इंडिया में गार्डासिल 9 आ चुका है, रिसेंटली आ चुका है, मे बी जस्ट अ मंथ बैक, एंड ये लाइसेंस्ड है फॉर यूज बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स. सो द टेक होम मैसेज इज दैट cervical cancer is preventable. That is the first take home message. The primary or the first defense is that you should vaccinate the girls between 9 to 25 years of age, because 100% of cancer cervix is due to HPV.
Secondary level of prevention is कि आप screening करो with PAP or LBC every three yearly, और दोनों LBC plus HPV every 5 years. Start at 21 years with PAP alone, 30 to 65 दोनों करो, and stop at 65 years with certain conditions. Tertiary prevention है कि आप कोई भी abnormality आपको screening में मिलती है उसको treat करो. And सबसे important part है to practice safe sex. So what is safe sex? Safe sex का meaning होता है, ये very well defined है कि when you say practice safe sex, ये तो कोई vague सा term नहीं है, it is definite. It means that no early sex, no premarital sex, शादी के पहले sex नहीं. So learn to say no to premarital sex, learn to say no to abnormal sex, which can be oral sex, anal sex. Say no, use condom each and every time, and say no to multiple sexual partners. This is safe sex. And say no to smoking. Why? Because smoking decreases the immune status of that person, and smoking by itself causes cancer. So before I conclude, I want to not complete this presentation without acknowledgements of the contributions made by the Indian Menopause Society and our president, Dr. Ambuja, and Secretary General, Dr. Sudha Sharma, and many of my colleagues who have worked a lot for presentations and public awareness and are doing a lot for the prevention of cancer of the cervix. So thank you all for a very patient hearing. And if there is any single thing that you learned today, then the effort spent in preparing this talk is really going to be worth it.